Myself, Humaira Khan from Exam Idea Classes. Let's start with the chapter 1 from the biology session, Reproduction in Flowering Plants. As we have completed pre-fertilization event in our first lecture. Now we will start the new topic, that is the pollination. As we know very well about the pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma. So this is the structure of a flowering plant. This is your gynoecium and this is your androecium. So this is your stigma and this is your anther. So the transfer of pollen grain, as we know the pollen grain will be present inside the anther. The transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. Pollination is of three types. First is autogamy, geitonogamy and xenogamy. Autogamy, transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower. So suppose we are having this flower. This is a bisexual flower. ये आपका bisexual flower है. In bisexual flower, the male and female reproductive organs both are present. So the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower, that is known as autogamy. जिन plants में autogamy होती है, they produces two types of flowers. One is clistogamous, one is chasmogamous. Clistogamous flowers, the flowers which do not open, वो flowers जो आपके open नहीं होते हैं. So clistogamous flowers are autogamous. Auto means self, as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. स्टिग्मा पर किसी और दूसरे फ्लावर का, स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन जो होगा वो लैंड नहीं करेगा. दैट विल नॉट लैंड ऑन द. सो ये आपका दूसरा फ्लावर है. इस दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं करेगा. सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अशोर्ड सीड सेट. ये आपके बोर्ड के एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोर्ड सीड सेट. सो अशोर्ड सीड सेट का मतलब है जब आपका एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है, तो यहाँ आपके 100% चांसेस हैं पॉलिनेशन होने के. तो जब पॉलिनेशन होने के 100% चांसेस होंगे तो वो आपके प्रोड्यूस करते हैं अशोर्ड सीड सेट. एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स कौन हुए? पॉलिनेटर्स हुए हमारे एजेंट्स जो हमारे पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर लेकर जाएंगे, लाइक विंड, इंसेक्ट्स एंड वाटर. सो the examples of clistogamous flowers are viola, common pansy, oxalis and commelina. Second type of the flowers are chasmogamous flowers. Chasmogamous flowers क्या होंगे आपके? सिमिलर होंगे, सभी जैसे स्पीशीज में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है उनमें? एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. एक्सपोज्ड का मतलब है उसमें स्टिग्मा और एंथर आपका नजर आ रहा है. Second type of the pollination is geitonogamy. The second type is geitonogamy. Geitonogamy means the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flowers of the same plant. So we are having this flower and on the same plant we are having the second flower. हमारे पास यहाँ second flower भी present है. So transfer of pollen grain from anther to the stigma of the different flower of the same plant. As we are seeing ये आपका same plant है. So geitonogamy is functionally, वैसे तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है, दिस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, बट
इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट आपका इन्वॉल्व होगा, चाहे वो आपका पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट है, चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट आपका यहाँ पर विंड है, चाहे आपका पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर है. बट इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स the 80% pollinating agents are insects. So but geitonogamy में genetically it is similar to autogamy. genetically का मतलब हुआ क्योंकि यहाँ पर genes are same because both the flowers related to the one plant only. इसलिए इस फ्लावर के जीन्स और इस फ्लावर के जीन्स दोनों सेम होंगे. So it is similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant. The third type of pollination is xenogamy, the transfer of pollen grain from anther to stigma of different flowers of the same species. Same species means suppose आपके पास अगर मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो के फ्लावर के ऊपर मैंगो का ही तो पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, किसी दूसरी स्पीशीज का तो लैंड अगर कर भी गया तो वहां पर पॉलन ट्यूब बाहर नहीं निकलेगी. सो दिस इज द वन फ्लावर, दिस इज द सेकेंड फ्लावर एंड बोथ आर blooming on different plant. That is why it is xenogamy, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plant flowers of the same species. This is known as xenogamy. Now I will discuss agents of pollination. Agents of pollination includes abiotic. The agents are said to be your abiotic. Abiotic means non-living, water, wind, and biotic agents, insects, butterfly, honeybee, etc. Large number of pollen grains are produced by plants using biotic mode of pollination as most of the pollen grains are wasted during transfer. जब आपका एक pollen grain एक एंथर में बहुत सारे आपके pollen grains का प्रोडक्शन होता है, वो इसलिए होता है जब आपके pollen grain एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो बीच रास्ते में बहुत सारे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती हैं, तो वो pollen grains आपके वेस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र. That is why most of the pollen grains are large in number. Adaptation in flowers for pollination. अब pollination होने के लिए जो आपके flowers हैं उनके अंदर क्या क्या adaptations present हैं. Suppose water pollination यहाँ पर होना है आपका. So water pollination में आपके जो pollen grains हैं, सो वो pollen grains आपके किस तरह के होने चाहिए या आपका फ्लावर कैसा होना चाहिए. वाटर पॉलिनेशन होता है आपका ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी बिकॉज दे रिक्वायर द वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ pollen grain. pollen grains के ऊपर एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होगी. दिस इज द म्यूसिलेज कवरिंग, ताकि पानी में आपके जो pollen grains हैं वो वेट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर, Vallisneria, Hydrilla, seagrass, that is your Zostera. Wind pollination. Wind pollination, pollen grains. जब हवा से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक दे विल बी लाइट, क्योंकि हमेशा कोई भी लाइट चीज़ जो होगी दैट विल फ्लाई. नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होंगे और उनके अंदर प्रेजेंट होंगे विंग्स. एंथर, वेल एक्सपोज्ड, एंथर नज़र आने चाहिए. द थर्ड स्टिग्मा, लार्ज एंड फेदरी. फ्लावर्स, वन ओव्यूल अरेंज्ड इन inflorescence. Inflorescence means
that is the compact arrangement of the ovule. For example, corn cob, cotton, date palm. Main features of wind and water pollinated plants. कि क्या मेन फीचर्स हैं आपके जो विंड एंड वाटर पॉलिनेशन से आपके का पॉलिनेशन होगा. दे प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर का मतलब है कि इसके अंदर आपका जो फ्लावर का जूस होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. इन 80% flowers or in 80% angiosperm the insect pollination takes place. So insects को attract करने के लिए flowers कैसा होना चाहिए? Large, it should be colorful, fragrant, खुशबू आनी चाहिए and rich in nectar. nectar का मतलब है flower juice present होना चाहिए, तभी तो आपके जो insects होते हैं वो attract करते हैं आपके flowers पर. pollen grain कैसे होना चाहिए? sticky and stigma also स्टिकी. अब कोई भी आपका इंसेक्ट है, अब उस इंसेक्ट को फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन को लेने के लिए जाना है. तो अब पॉलन ग्रेन को वो लेने जाना है, सो देयर आर सम रिवॉर्ड, सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स के लिए सर्टेन रिवॉर्ड्स हैं. ये रिवॉर्ड का मतलब है इनाम, कि इंसेक्ट्स को कुछ इनाम मिलना चाहिए. फ्लावर देगा क्योंकि वो उसके पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करा रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर. सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स, नेक्टर एंड एडिबल पॉलन ग्रेन्स एज फूड, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स. कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मॉथ है एंड ए फिग प्लांट. मॉथ और फिग प्लांट का एक आपका एसोसिएशन है जिसमें फिग प्लांट के अंदर मॉथ अपने एग्स को ले करता है. वहीं पर जो लार्वे होंगे दे विल गेट द न्यूट्रिशन, वो वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेते हैं. एग्जाम्पल है एमोर्फोफिलस एंड युक्का. युक्का आपका एक मॉथ है, दिस इज द मॉथ. युक्का आपका मॉथ है जो आपके फिग प्लांट के अंदर जाकर एग्स को ले करता है, और जब उसके मॉथ्स बड़े हो जाते हैं तो जब वो फ्लावर के अंदर से बाहर निकलेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे. देन दे विल मूव टुवर्ड्स द अनदर फ्लावर और वहाँ जाकर पॉलिनेशन करते हैं. As we know about the autogamy, autogamy is known as self-pollination. That means the transfer of pollen grain from anther to the stigma. But continuation में जब आपका autogamy होता है तो autogamy continuation में जब होगा it means self-pollination हो रहा है. तो self-pollination से देयर विल नॉट बी द वेरिएशंस नहीं आते हैं और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स अगर कोई भी आपका पॉलन ग्रेन डिजीज्ड है तो वो कंटिन्यूसली फ्लावर भी वहाँ पर आपके डिजीज्ड ही पैदा करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स कि नेचर ने अपने आप से ही ऑटोगैमिस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का फॉर्मेशन किया. सो वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन आपने ख़त्म करना है, आपने सेल्फ पॉलिनेशन को ख़त्म करना है एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. एज continued self-pollination lead to inbreeding depression. It includes pollen release and stigma receptivity not synchronized. ये आपका फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि pollen release और स्टिग्मा की जो receptivity है वो सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए. सेकेंड,
एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, एंथर और स्टिग्मा आपके दोनों अलग अलग पोजिशन पर हो, एंड इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, पिस्टिल अपने आप से ही पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट ना होने दे। ये आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका होता है, दिस इज जेनेटिक, दिस इज जेनेटिक incompatibility, this is genetic incompatibility, and the fourth one is production of unisexual flower, either the flower is male or female, चाहे आपका flower आपका male हो या female हो, तो वहाँ पर आपका pollination that is self pollination नहीं होगा, वहाँ हमेशा आपका cross pollination होगा. So these are the outbreeding devices. Next topic is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction means कि जब आपका आफ्टर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जब आपका पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द पॉलन ग्रेन. जब पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है तो ये पॉलन ग्रेन आपका पॉलन ट्यूब यहाँ से निकालेगा, लेकिन कब निकालेगा? द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पॉलन. कंपैटिबल पॉलन का मतलब है द सेम स्पीशीज, द स्टिग्मा एंड द पॉलन शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज. तो अब कैसे पता चल रहे हैं आपके स्टिग्मा पर को कि ये मेरी सेम स्पीशीज़ है और पॉलन ग्रेन जो है वहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर निकालेगा. सो द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पॉलन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद होने वाले इवेंट्स कैसे होंगे? दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू germ pores. In the starting, in our first lecture, we have discussed about the exine, that is the sporoexine, outermost layer of your pollen grain, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की. बट वन प्लेस पर आपके स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका जर्म पोर. यहाँ आपका जर्म पोर प्रेजेंट है. सो पॉलन ट्यूब यहाँ से आपकी बाहर निकलेगी. So pollen grain produce pollen tube through germ pores to facilitate transfer of the male gamete to the embryo sac. जैसे ही कोई pollen grain अपने स्टिग्मा पर लैंड करता है, so there is a release of some chemicals that is known as dialogue conversation between the pollen grain and the stigma. There will be a dialogue conversation with respect to the release of the chemical. जैसे ही कोई pollen grain stigma पर सेम स्पीशीज़ का pollen grain सेम स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर लैंड करेगा और दोनों की कंपैटिबिलिटी हो जाएगी. So the pollen tube will be releases from this point where the germ pore is not present. Artificial hybridization. Hybridization means suppose you are having the two things. आपके पास दो चीज़ हैं और आपने उसकी एक न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन करना है, न्यू हाइब्रिड वैरायटी का फॉर्मेशन करना है. So that comes under the hybridization. So artificial hybridization, crossing different varieties of species. दो different species, variety of species को आप cross कराएंगे. So hybrid individual with desirable characters of the parent plants, that is known as artificial hybridization. Continuous self pollination कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है. अब फार्मर को चाहिए कि कोई एक अच्छा वैरायटी का सीड उसको चाहिए होता है, तो उसके लिए उसको अपना डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन जो है वो डस्ट कराना होता है आपके स्टिग्मा पर. So he used artificial hybridization.
desired pollen grain for pollination, stigma protected from contamination. Contamination का मतलब है जो ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर का pollen grain इस स्टिग्मा पर नहीं जाना है। जो आपका अपना डिज़ायर्ड pollen grain है, जिसके अंदर आपके अपने डिज़ायर्ड जीन्स प्रेजेंट हैं, उसी से आपने यहाँ पर कोई अच्छा फ्लावर, कोई आपने अच्छा सीड बनाना है तो वो उसको आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, नॉट फ्रॉम द सेम प्लांट। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हियर आर 2 पॉइंट्स दैट कम्स अंडर दिस। फर्स्ट इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ दिस एंथर। इट मीन्स आप एंथर को रिमूव कर देंगे बाय अ फोर्सेप। आपने यहाँ एंथर को एक बाइज फोर्सेप से इस एंथर को रिमूव कर दिया। सो दिस इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। अब यहाँ पॉलन ग्रेन होगा ही नहीं, अब यहाँ पॉलन ग्रेन होगा ही नहीं। सो देर इज नो चांस ऑफ द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम प्लांट ऑन द स्टिग्मा। बट अब इट मे बी पॉसिबल कि और कोई और सा पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर लैंड कर जाए, तो उससे बचने के लिए व्हाट यू विल डू, उससे बचने के लिए आपको जो आपका फ्लावर है उसके ऊपर क्या कर देना है, आपकी को उसकी कर देनी है बैगिंग। बैगिंग का मतलब है आपको यहाँ कुछ बैग्स बनाने हैं, बटर कप्स के, बटर पेपर के आप बैग्स बना लीजिए, मसलिन क्लॉथ के आप बैग बना लीजिए और उसे आप अपने फ्लावर की बैगिंग कर दीजिए। सो फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड पॉलन वो है जो आपको पॉलन ग्रेन चाहिए नहीं, क्योंकि आपको पॉलन ग्रेन वो चाहिए जो आपके पास है, जो आपका डिज़ायर्ड है, जिससे आपने पॉलिनेशन कराना है। देन आफ्टर दिस बैगिंग, बैग्ड फ्लावर कौन सा है आपका, दिस इज द बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब ये आपका मैच्योर हो जाएगा। सो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा के ऊपर आप यहाँ से बैग हटाएं। यू हैव टू रिमूव दिस बैग, इस बैग को यहाँ से आप हटा दें। एंड डज द पॉलन ग्रेन ऑफ योर डिज़ायर्ड, आप अपने डिज़ायर का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट करें एंड देन रीबैग्ड, इसको आप दोबारा से इस पर बैगिंग कर दीजिए, ताकि अभी भी जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो कोई और दूसरा कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट ना करे। As we know, the pollen grains are formed, the male gametes are formed, and egg has been formed. So next topic is double fertilization. Double fertilization is the unique feature in the angiospermic plants. Double fertilization means there will be the 2 fertilizations. यहाँ पर क्या होंगे, आपके 2 fertilizations होंगे. So how the 2 fertilizations will take place? As we know, this is the embryo sac, this is the micropylar end, this is the chalazal end. Towards the chalazal end, there are 3 antipodal cells, 1 central cell that have 2 polar nuclei, and towards the micropylar end, 1 is your large cells and 2 are the smaller cells. So this large cells is said to be your egg, and these 2 cells are synergids. Now, as the pollen grain will land on the stigma,
से देयर विल बी द इमर्जेंस ऑफ द पोलन ट्यूब, आपकी पोलन ट्यूब निकलेगी हैविंग द 2 मेल गैमेट्स. सो दिस इज योर pollen grain and have 2 male gametes. Now the pollen tube will emerges out. यहाँ से आपकी pollen tube निकली जिसके अंदर प्रेजेंट है आपके 2 male gametes. This is the pollen tube. ये आपकी pollen tube है. As this pollen tube, so inside the flower, this is your ovary. So यहाँ से so this is the structure of the embryo sac. Embryo sac. This is the pollen grain. Here is the pollen tube. ये आपकी pollen tube निकली along with the 2 male gametes. इस embryo sac में यहाँ आपका egg present है and आपके synergist present है. Inside the synergist, the filiform apparatus are there that will releases the chemical that will attract this pollen tube towards the micropylar end. Towards the micropylar end. In case of the double fertilization, when one male gamete, the ploidy of the male gamete will be any number, will fuse with one egg. So that will form zygote. And the ploidy of the zygote will be 2n in number. So there will be the fertilization. And this process is also known as syngamy. इसको आपने syngamy बोला. तो what we are observing, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक fertilization यहाँ हमारा complete हो जाता है. Now we are having the second male gamete. The second male gamete will fuse with these 2 polar nuclei which are present in the central cell. So the second fertilization. Now we have 1 male gamete. Again, its ploidy is n in number. It will fuse with the 2 polar nuclei and it will form PEN, primary endosperm nucleus. After the fertilization, it will form a primary endosperm nucleus and its ploidy will be 3 in number because 2 polar nuclei are having n plus n ploidy and 1 male gamete is having 1 n ploidy. So that will be the formation of 3n. So this is the double fertilization because this process is known as triple fusion. इस process को आपने triple fusion बोलना है. एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ आपका, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ. इट मीन्स द फर्स्ट इज योर सिनगैमी, द सेकेंड इज योर ट्रिपल फ्यूजन. दैट इज वाई इन एंजियोस्पर्म दिस प्रोसेस इज सेड टू बी योर डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एज अ zygote and primary endosperm nucleus formed, the ploidy of the zygote will be 2n in number and the ploidy of the endosperm is 3 in number. After the double fertilization, post-fertilization events takes place. That is, it includes endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit. This is the fate of the ovule. This is the fate of the ovule. Maturation के बाद ovule आपका सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. जो हमारे पास एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल. इसका मतलब है कि क्या फंक्शन है आपके एंडोस्पर्म का? एंडोस्पर्म का फंक्शन है न्यूट्रिशन.
जब आपका एम्ब्रियो बना है, अब एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए फूड की तो रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड उसको कहाँ से मिलेगा? द फूड उसको जो मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द एंडोस्पर्म। टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। फ्री न्यूक्लियर टाइप, दैट इज कॉमन मैथड। फ्री न्यूक्लियर टाइप, दिस इज योर एंडोस्पर्म, एंड यहाँ पर आपके न्यूक्लियाई डिवाइड कर जाते हैं, जिसको आपने बोला फ्री न्यूक्लियर टाइप। वन इज योर सेल्युलर टाइप, इट मीन्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ये दिस इज योर सेल्युलर टाइप। जो आपका एंडोस्पर्म होता है, या अगर हम सीड की बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सीड, वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस, वन इज एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड। सीड के मैच्योर होने से पहले जो आपका एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खा जाएगा। एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, तो वहाँ पर आपका एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो उसको आपने कहा नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन मीन्स नहीं है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, एज इन केस ऑफ पी एंड ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस, अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स इन मैच्योर सीड। सीड के अंदर कुछ पोर्शन अभी भी आपका एंडोस्पर्म का बचा हुआ है, इसका मतलब है आपके एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया है। एग्जाम्पल व्हीट, मेज। मेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। कैस्टर एंड now we'll discuss about the embryo. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is formed. Where the zygote is formed. Embryogeny. Early stages of embryo development is known as embryogeny. The zygote gives rise to the proembryo. सबसे पहले zygote आपका proembryo देगा. After that, globular embryo, heart-shaped embryo, and the mature embryo. So these are the stages. First, there will be the formation of proembryo, globular, heart-shaped, and mature embryo. जो एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में आपके कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलिडन्स, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। सो जो आपका कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन का फंक्शन होता है, इसके अंदर आपके स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। प्लेम्यूल विल गिव राइज टू, प्लेम्यूल देता है आपका शूट, एंड रेडिकल विल गिव राइज टू रूट, और रेडिकल आपका रूट का फॉर्मेशन करता है। जो एक सीड होता है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए सीड। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो आपका मैच्योर ओव्यूल है वही आपके सीड का डेवलपमेंट करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सीड, मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकॉटिलिडनस। मोनोकॉट मीन्स वन कॉटिलिडन एंड डाइकॉट मीन्स टू कॉटिलिडन्स आर देयर। जो मोनोकॉट है आपका सीड, उसके आपके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्क्यूटिलम, इसको आप बोलते हो कॉटिलिडन, बट इन डाइकॉट के अंदर आप कॉटिलिडन को कॉटिलिडन ही बोलते हो, बट इन मोनोकॉट द कॉटिलिडन इज सेड टू बी द स्क्यूटिलम। कोलियोराइजा, एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ गिविंग रेडिकल एंड रूट कैप। ये एक ऐसी शीट होती है जो आपके रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है। एंड द कोलियोप्टाइल, ये एक आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? प्लम्यूल की कवरिंग है। सीड में इफ वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सीड, सो सीड कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट, डबल लेयर्ड फॉर्म्ड बाय द इंट्यूगमेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था। इंट्यूगमेंट, ओव्यूल के ऊपर इंट्यूगमेंट प्रेजेंट है, वही इंट्यूगमेंट आपके टेस्टा एंड टैगमन में कन्वर्ट होते हैं। द आउटर इंट्यूगमेंट इज सेड टू बी योर टेस्टा एंड द इनर इंट्यूगमेंट इज सेड टू बी योर टैगमन। माइक्रोपाइल, एज वी नो द माइक्रोपाइल, ये आपका
माइक्रोपाइल था, जहां पर आपका इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं था। माइक्रोपाइल सीड के अंदर एज अ स्मॉल ओपनिंग ही प्रेजेंट होता है ऑन सीड कोड एंड इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू सीड फॉर द जर्मिनेशन। जब आप सीड को सॉइल में सो करते हैं तो वहाँ पर उस सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए वाटर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो आपका वाटर एंड ऑक्सीजन जाएगा वो एंटर करेगा आपका टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, दैट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। हाइलम, स्कार ऑन सीड कोट, आपके सीड के ऊपर, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, हेयर विल योर हाइलम। सीड आपके दो तरह के हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म मीन्स द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का जो आपका अभी भी कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, उसमें अभी भी बचा हुआ न्यूसेलस प्रेजेंट है। तो रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंट, जो बचा हुआ है इन ब्लैक पेपर, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। सीड कई बार आपका डोरमेंसी में जाता है। डोरमेंसी इज नोन एज स्टेट्स ऑफ इनएक्टिविटी, जिसके अंदर एक सीड की जो एक्टिविटी है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो आपकी कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। डोरमेंसी, we have done pericarp. What is the pericarp? Pericarp is said to be your fruit wall. पेरीस्पर्म और पेरिकार्प में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड में आपका ये डिफरेंस कई बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। सो पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, but pericarp is the wall of your ovary that develops into a wall of the fruit, that is known as pericarp. In true fruits, only ovary contributes in fruit formation. That is why it is known as the true fruit. But sometimes it happens कि जो आपका ओवरी के साथ थैलेमस भी fruit formation में participate करेगा, that type of fruit is said to be the false fruit. For example, strawberry. For example, apple. Next important topic, जहाँ से बोर्ड में कई बार आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, that is your apomixis. Apomixis, a form of asexual reproduction, mimics sexual reproduction. Asexual reproduction होता है आपका, लेकिन वो मिमिक्री करता है कि जैसे उसके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में सीड का जो फॉर्मेशन है वो आपका बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस। क्यों हो रहा है आपका एपोमिक्टिक सीड्स का फॉर्मेशन, कैसे हो रहा है? सबसे पहले क्या है, आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, बिना मियोसिस के उसका फॉर्मेशन होगा। सो दैट डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के वो आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। सेकंड, द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। इसके चारों तरफ आपकी सेल्स प्रेजेंट है, न्यूसेलस की सेल्स। दीज आर द न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस सो प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। अब ये दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाती हैं। अब न्यूसेलस की सेल होती हैं आपकी 2n in number. So protrude into embryo sac, develops into embryo, as in case of citrus and mango. Without fertilization, there will be the formation of apomictic seeds. Let's come to the last topic of our chapter, that is polyembryony. Poly means बहुत सारे. Embryo means embryony means embryos. So occurrence of more than one embryo in a seed often associated with apomixis, that is known as polyembryony. For example, citrus and groundnut. As we can observe, this is the embryo sac and these are the nucellus. As we know the ploidy of the nucellus, 2n. तो आपका एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की पोलाइडी भी आपकी 2n in number है. So these nucellus cells comes inside the
एम्ब्रियो सैक। तो जब एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ आ जाएंगी एंड दे विल डेवलप एज ए एम्ब्रियो, सो दैट इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी। उसको आप पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हो। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द revision part of our chapter, that is first chapter, reproduction in flowering plants. If you want the notes of this chapter, you have to contact with us. Thank you and have a nice day.